وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ نثار نے اسے حکم دیا، اٹھ اور لانتی سیان کے اس غلام کا کٹا ہوا سر وادی سبز لے جا۔ مردود سیان کو میرا پیغام یہ ضرور پہنچا دینا کہ اس کے دوسرے نائبوں کا حشر بھی بہت جلد یہی ہوگا، اور اب خود اس کا انجام بھی زیادہ دور نہیں جب اس کی کٹی ہوئی گردن پر دہکتا ہوا توا رکھا جائے گا۔ نثار کا حکم سن کر زخمی قیدی تخت کا کنارہ پکڑ کر اٹھا، اور اسی وقت نثار نے وہب کے کٹے ہوئے سر پر ٹھوکر مار دی۔ کٹا ہوا سر لڑکتا ہوا تخت سے نیچے جا گرا، اور زخمی قیدی نے جھک کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا، اور پھر نثار کے حکم پر زخمی لی کے لیے ایک گھوڑا فراہم کر دیا گیا، اور گھوڑے پر بیٹھتے ہی وہ زخمی قیدی اس طرح وہاں سے ہوا ہو گیا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو، اور اسے جانے کے لیے مجمع نے راستہ دے دیا تھا۔ جو کام شعراویہ کو انجام دینا تھا زندہ بچ جانے والے قیدی سے لے لیا گیا۔ اس کے بعد وہ خونی تماشا ختم ہو گیا۔ میں نثار اور احزم کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور بستی میں لوٹ آئی۔ اب تک میری سماعت میں وہب کی آخری چیخیں گونج رہی تھی۔ اسے بہت تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا۔ اس کی ہلاکت یقیناً عبرتناک تھی۔ احزم کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ عاشر کی بستی میں سیان یا وہب کے قدیم نمک خواروں کے لیے وہب کو دی جانے والی سزا عبرتناک ہی تھی۔ اس روز میرا دل کچھ بجھا بجھا سا رہا، اور میں نے وحشت و بربریت کا جو خونی تماشا دیکھا تھا اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے میں مجھے کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ جو مارے گئے اچھے یا برے ہونے سے قطعی نظر میری طرح ہی انسان تھے۔ اگر انہیں انسان بھی نہ کہا جائے تو آدمی بہرحال کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آدم ہی کی نسل سے تھے۔ معلوم نہیں آدمی کب آدمی سے انسان بنے گا، اور کب تک آدمی ہی کے ہاتھوں آدمی کا خون بہتا رہے گا۔ اور میں دن بھر یہی سب کچھ سوچتی رہی، اور خود میں بھی تو ایک آدمی کے خون کی پیاسی تھی۔ مگر کیا واقعی وہ آدمی ہے؟ نہیں، وہ آدمی نہیں، سیان ہے، درندہ ہے، میرے ذہن نے جواب دیا۔ اور آدمیوں کو اپنی بقا کی خاطر درندوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی پڑتا ہے۔ درندہ اور آدمی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ آدمی کی مجبوری بھی ہے اور درندے کی بھی۔ دوسرے دن صبح مجھے اور نثار کو لشکر لے کر اس وحشی قبیلے کی سمت روانہ ہونا تھا، جس نے دوسرے دن صبح ادھر سورج طلوع ہوا، ادھر ہمارا لشکر وحشی قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا، اور یہ سوچ کر کہ کہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سیان عاشر کی بستی پر حملہ نہ کر دے، سپاہیوں کی زیادہ تعداد ساتھ نہیں لی گئی، اور یہ صرف وہی سپاہی تھے جو میرے ساتھ تریال سے یہاں آئے تھے۔ ان میں کوئی بھی مقامی سپاہی نہیں تھا۔ زخمی سپاہی کو ہم نے لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے رکھا، اور اسے اگلے دستے کا سوار اپنے گھوڑے پر بٹھائے ہوئے تھا۔ دوپہر تک ہمارا لشکر کسی قابل ذکر واقعے کے بغیر سفر کرتا رہا، اور پھر ہم نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد لشکر پھر روانہ ہو گیا، اور میں اپنا گھوڑا اس زخمی سپاہی کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑا رہی تھی کہ میں نے ایک اچٹ سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو چونک اٹھی۔ واضح طور پر میں نے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھے۔ وہ بار بار اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان سا لگتا ہے، میں نے سپاہی کو مخاطب کیا۔ نہیں تو اے آتون دیوی، وہ چونک کر بولا، تو یقیناً کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پھر کہا، بتا دے کیا بات تجھے پریشان کر رہی ہے؟ مجھے شبہ ہو رہا ہے اے آتون دیوی کہ شاید یہ وہ راستہ نہیں۔ ڈرتے ڈرتے آخر زخمی سپاہی نے بتا ہی دیا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر مسرت کے پیش نظر برداشت کر گئی، اور پھر صرف اتنا ہی کہا، اگر تجھے یقین نہیں کہ یہ وہی راستہ ہے تو پھر سارے لشکر کو کیوں غلط راستے پر ڈال رہا ہے؟ اپنے اوپر قابو پانے کے باوجود بھی میری آواز میں سختی آ گئی، اور میری آواز بھی کندرے بلند ہو گئی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر نثار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا چل رہا تھا،
اور اس نے میری تیز آواز سنی تو اپنا گھوڑا قریب لے آیا اور بولا، کیا ہوا آتون؟ اسے یقین نہیں کہ یہ ٹھیک سمت ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے زخمی سپاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چبھتی آواز میں کہا۔ کیا؟ نثار چونک اٹھا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے آتون؟ اس کے لہجے میں فکر مندی کا اظہار ہونے لگا۔ وہی کہہ رہی ہوں اے نثار جو یہ کہہ رہا ہے۔ غیر یقینی سمت میں سفر جاری رکھنے سے یہ بہتر ہے اے آتون کہ لشکر کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا جائے، نثارہ نے مشورہ دیا۔ فی الحال تو یہی بہتر ہے، اور میں نے نثار کے مشورے سے اتفاق کیا، اور اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سپاہیوں کا ایک دستہ کر دیا جائے جو اسے اپنے ساتھ لے جا کر ارد گرد کے علاقے اور راستوں کا جائزہ لے، اور پھر جب صبح صحیح راستہ مل جائے تو سفر شروع کیا جائے۔ اور پھر لشکر کو روک دیا گیا اور راستوں سے ذرا ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ زخمی سپاہی سخت پریشان اور ہراساں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سپاہیوں کے دستے کے ساتھ ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ میرے اور نثار کے لیے سپاہیوں نے ایک خیمہ لگا دیا اور خیمے کے اندر آ گئے۔ وہ نسبتاً ہموار زمین تھی جہاں ہمارے بیٹھنے کے لیے ایک دری بچھا دی گئی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر صحیح راستہ نہ ملا تو کیا ہوگا اے نثار؟ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہاں واقعی، نثار نے سر ہلایا، اور پھر تو واقعی مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم وہ دونوں اسی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے اور خاصی دیر ہو گئی۔ مجھے اس دستے کی طرف سے فکر ہونے لگی جو زخمی سپاہی کو لے کر راستے کی تلاش میں گیا تھا، اور میں نے اپنی اس تشویش کا اظہار انتظار سے بھی کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا، وہ تو خود فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اور کچھ ہی دیر اور ہوئی تھی کہ زخمی کے سپاہی کے ساتھ بھیجے گئے دستے کا سالار گھبرایا ہوا سا خیمے کے اندر داخل ہوا، اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تجھے کیا ہوا؟ نثار نے سالار کو مخاطب کیا۔ وہ اے سردار، وہاں کیا ہوا؟ وہاں کچھ کہے گا بھی تو؟ نثار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ کھوپڑیاں اور گوشت خور چوہے وہاں ہمیں نظر آئے۔ پھر جب سالار کے حواس کچھ بجا ہوئے تو اس کی وحشت کا سبب معلوم ہوا۔ ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ دستہ نشیب سے قدری بلندی پر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں ایک میدان میں انسانی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کی ہڈیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان گوشت خور چوہے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کھوپڑی کا اوپری حصہ میدان میں لکڑی گاڑ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اور وہ دور سے ہی نظر آتا تھا۔ تو اس میں اتنے گھبرانے کی یا خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ نثار نے کہا۔ وہاں اس میدان میں کبھی کوئی جنگ لڑی گئی ہوگی اور مرنے والوں کی لاشیں وہیں چھوڑ دی گئی ہوں گی۔ اگر ایسا ہوتا اے سردار تو وہاں مرنے والوں کے ہتھیار بھی پڑے ہوتے، سالار بولا۔ کیا تو اتنی سی بات بھی نہیں جانتا کہ مرنے والوں کے ہتھیار زندہ بچ جانے والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ تو اسے قصے چھوڑ اور یہ بتا، کوئی راستہ ایسا ملا جو زخمی سپاہی کا پہلے سے دیکھا بالا ہو؟ نثار نے دریافت کیا۔ وہ اسی راستے کے بارے میں پر یقین تھا کہ اس کا دیکھا ہوا ہے، جس پر ہمیں ایک میدان میں آگے چل کر کھوپڑیاں ملی، اور اس کا کہنا ہے کہ جب وہ چند روز پہلے اس راستے سے گزرا تھا تو وہاں کھوپڑیاں نہیں تھی۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، میں بول اٹھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ چند روز کے اندر لاشیں ڈھانچوں میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور میں نے بھی اس سے یہ بات کہی تو وہ بولا اس وقت رات تھی، ممکن ہے اسے اندھیرے میں کھوپڑیاں نظر نہ آئی ہوں۔ میں غصے میں بل کھا کر رہ گئی اور پھر چڑ کر بولی، جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا سر بھی کاٹ کر وہیں ان کھوپڑیوں کے درمیان پھینک آؤں، مگر مجبوری ہے کہ اس وحشی قبیلے تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اسے لے کر آ، میں خود اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا حکم سن کر سالار باہر چلا گیا، اور جب لوٹا تو زخمی سپاہی بھی اس کے ساتھ تھا۔ سالار اسے سہارا دیے ہوئے خیمے میں داخل ہوا۔ میرے کچھ پوچھنے یا کہنے سے پہلے زخمی سپاہی نے مجھ سے کہا، اے آتون دیوی، میں تجھ سے سخت شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں کہ محض میری وجہ سے تجھے، سردار نثار اور سارے لشکر والوں کو پریشانی اٹھانے پڑی، مگر اب شاید ایسا نہیں ہوگا کیونکہ صحیح راستہ مل گیا ہے۔ تجھے یقین ہے کہ وہ صحیح راستہ ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اے آتون، زخمی سپاہی نے جواب دیا، اگر وہاں وہ کھوپڑیاں پڑی نہ ہوتی تو شاید میں نہ چکراتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جب میں اس راستے سے گزرا تھا تو میری نظر اندھیروں کی وجہ سے ان کھوپڑی پر نہ پڑی ہو۔ سوچ لے اب یہ وقت ہے، بعد میں کہیں تیری رائے بدل نہ جائے۔ راستہ وہی ہے آتون دیوی، کیونکہ مجھے کوئی اور راستہ اس طرح کا جانا پہچانا نہیں لگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تو راہ بھٹک گیا ہو اور تو اس راستے سے گزرا ہو؟ میں نے اسے مزید قریننے کی خاطر سوال کیا۔ خلاف توقع میرے اس سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ راستہ بھول جانے کے بعد وہ کئی دن تک
भटकता रहा था और मैंने उससे जो सवाल किया था उसे इसीलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं उसके बोलने का इंतजार करती रही। तू चुप क्यों हो गया? मेरे सवाल का जवाब दे। जब वो बोला ही नहीं तो मैंने उसे टोका, ऐ अतून देवी, सच्ची बात यह है कि मैं हतमी तौर पर तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुमकिन है कि तूने जिस अंदेशे का आधार किया हो ऐसा ही हुआ हो या फिर ऐसा ना हुआ हो। उसके चेहरे से तज़बज़ब का इज़हार हो रहा था। मुझे इंतहाई शदीद गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि अपनी बोटियां नोचने लगूं या उस जख्मी सिपाही के टुकड़े कर दूं। उसने मुझे सख्त उलझन का शिकार कर दिया और यकीनी तौर पर वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। और मैंने बड़ी बेबसी की आलम में नसार की तरफ देखा क्योंकि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तू जा, नसार ने जख्मी सिपाही को मुखातब किया। जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई कसूर नहीं। सिपाही अदब से झुककर खैमे की तरफ मुड़ गया और नसार ने सिपाही से जो कुछ कहा था मेरे लिए खिलाफ तवक्का था। इसके एतमाद को बहाल करने की जरूरत है, ए अतून। जब सिपाही चला गया तो नसार बोला, हमारा अजहारी नाराजगी उसके ज़हन को और भी उलझा देगा और फिर वो कोई सही फैसला नहीं कर सकेगा, जो जाहिर है कि हमारे ही लिए नुकसानदाह साबित होगा। हमें बहरहाल सही रास्ता तलाश करना है। अगर उसके लिए भटकना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। यानी वो हमें जिधर भी भटकाएगा हम भटकते रहेंगे। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सवाल किया। मजबूरी है, नसार ने ठंडा सांस भरा, और इसके सिवा और क्या किया जा सकता है। और कुछ ही देर के बाद लश्कर एक बार फिर रवाना हो गया और जल्द ही हम उस जगह पहुंच गए जिसके बारे में सलार ने बताया था। और वही मैदान जहां खोपड़ियां बिखरी हुई थीं, वो मंजर यकीनन बहुत लर्ज़ाखेज था। उस मैदान को हम दाएं जानब छोड़ते हुए आगे बढ़ गए और हमारा जफर जख्मी सिपाही की रहनुमाई में जारी रहा। सूरज गुरूब होने के करीब था कि मेरा जी चाहा कि उस जख्मी सिपाही के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दूं। वो हमें घुमा फिरा कर दोबारा उसी जगह ले आया जहां से हमने सफर का आगाज किया था और सामने ही खोपड़ियों वाला मैदान नजर आ रहा था। आधे दिन का सफर तय करने का ये अंजाम हुआ कि रात के वक्त तो सफर करने का सवाल ही नहीं था, और जब दिन की रोशनी में सही रास्ता मिलना महाल था तो रात के तो रास्ते की तलाश में मारे मारे फिरना कतई हमाकत होता। और फिर अब तो ये भी तय करना था कि बिला वजह भटका जाए या वापसी का सफर इख्तियार किया जाए। सिपाही की हालत काबिल दी थी। वो किसी से भी नजर नहीं मिला रहा था और उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैंने आखिरकार खोपड़ी वाले मैदान ही के करीब पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया और जब हमारे लिए खैमा लगाकर उसमें बिस्तर लगा दिए गए तो हम बुझे हुए चेहरे लिए खैमे के अंदर दाखिल हुए। कुछ देर नसार भी चुप रहा और मैं भी खामोश बैठी रही। आखिर नसार की आवाज ने ही ये खामोशी तोड़ी। वो बोला, ऐसा करते हैं ए अतून कि हम लश्कर को साथ लेकर वापस अपनी बस्ती की तरफ चलते हैं। खवाम खा पूरे लश्कर को भटकने से बचाने की यही एक सूरत है कि सिर्फ एक दस्ते को जख्मी सिपाही के साथ छोड़ दिया जाए और जब ये लोग सही रास्ता तलाश कर लें, उस वैशी कबीले की बस्ती तक पहुंच जाएं, तो फिर वापस आकर हमें वहां से साथ ले जाएं और फिर सिर्फ एक शख्स की बजाय पूरे दस्ते के सिपाहियों को रास्ते का इल्म होगा। इसलिए हम उन्हें भटकेंगे। सुबह होते ही हम अपनी बस्ती की तरफ चल देंगे। और बादल नाखवास्ता मुझे नसार की यह तजवीज़ कबूल ही पड़ना पड़ी। खाने से फरागत होने के बाद नसार ने अहले लश्कर को भी अपनी तजवीज़ से आगाह किया और सिपाहियों के चेहरों से इत्मीनान का इज़हार होने लगा। यकीनन वो भी इस बेमकसद सफ़र से बेजार हो गए थे। और खैमे के अंदर जलते हुए चिराग की लो धीमी करके नसार अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और मैं पहले ही सोने के लिए लेट चुकी थी। हवा में उस रोज कुछ तेजी थी और फिजा में भी कदरें खड़की थी और मैंने इसीलिए चादर ओढ़ ली। अभी मेरी आंख नहीं लगी थी कि अचानक कई चीखें बीक वक्त बुलंद हुई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। नसार भी उठकर खड़ा हो गया। वो अपनी राइफल उठाए हुए मुझसे बोला, ए अतून, तू यही रह, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। और मैंने भी झुक कर अपने सराहने रखी हुई राइफल उठा ली और खैमे के दर पर पड़ा हुआ पर्दा उठाकर हम दोनों बाहर आ गए। उसी वक्त मेरी निगाह खोपड़ियों वाले मैदान की तरफ उठी और मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। लश्कर के सिपाही भी तस्वीर हैरत बने हुए उसी तरफ देख रहे थे। खोपड़ियों वाले मैदान में जैसे चमकीली बदरूहें रक्स कर रही थी। उनके रक्स से मुख्तलिफ हैबतनाक शक्लें बनकर और बिगड़ रही थीं और वो मंजर वाकई खौफजदा कर देने वाला था। यकीनन उसी मंजर को देखकर कुछ सिपाहियों के मुंह से चीखें निकल गई थीं और उसी वक्त मुझे पूर्ण इसरार सरगोशी सुनाई दी, ऐ मामला डर मत, ये बदरूहें नहीं हैं बल्कि हवा की रगड़ से हड्डियों के रेजे फिजा में बुलंद होकर चमक पैदा कर रहे हैं। हवा की गर्दिश ही के सबब
इससे मुख्तलिफ भयानक शक्लें बन रही हैं। तू वहां जा और अपने साथ नसार को भी ले जा ताकि तेरे सिपाहियों का खौफ खत्म हो। और सुन कि वैशी कबीले तक तेरी रहनुमाई अब खजीरा करेगी। वो कल सुबह तेरे पास पहुंच जाएगी। देख ले कि तेरे दिल से खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। उन अल्फाज के साथ ही सरगोशी मालूम हो गई और मुझे हमेशा मेरे असल नाम से ही मुखातब किया जाता था। तूने कुछ सुना ए अतून? वो पुर इसरार सरगोशी। उसने मुझे मुखातब किया था और अन बदरूहों का राज। नसार की आवाज़ धीमी थी। उसने मुझे बताया कि वो बदरूहें नहीं बल्कि, और मुझे भी सब कुछ बताया जा चुका है ए नसार। मैं बोल उठी, क्या उसने तुझे तेरा नाम लेकर मुखातब किया था? हाँ, मुझे मेरे ही नाम से मुखातब किया गया ए अतून, नसार ने जवाब दिया। और मैं चौंक उठी। मेरे लिए ये बात मजीद हैरान कुन थी कि वो पुर इसरार सरगोशी एक ही वक्त दो अफराद को अलग अलग सुनाई दी थी। और दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि अब मुझे खोपड़ी वाले मैदान में नजर आने वाले मंजर से कतई खौफ महसूस नहीं हुआ। सुनो, मैंने बुलंद आवाज में सिपाहियों को मुखातब किया, वो बदरूहें नहीं हैं बल्कि सिर्फ नजर का धोखा है। ये बात मैंने सफाइयों को समझाने के लिए कही और मैं उनके करीब जा रही हूँ। तुम देखोगे कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मगर ए अतून देवी, तू तो खुद ही एक देवी है। लश्कर में कोई बोला, फिर भला बदरूहें तेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? लेकिन नसार, सरदार नसार तो कोई देवता नहीं और वो भी मेरे साथ वहां तक जाएगा, मैंने जवाब में कहा। और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और मैंने नसार का हाथ थाम कर खोपड़ियों वाले मैदान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और सिपाहियों की हैरत रदा नजरें हम दोनों की तरफ उठी हुई थीं और हम दोनों जल्द ही उस मैदान में पहुंच गए। हवा अब भी उन खोपड़ियों और इंसानी हड्डियों के दरमियान सरसरा रही थी और अब भी जमीन की तरफ से चमकीला गुबार सा उठ रहा था और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा था। चंद ही लम्हे हम वहां खड़े रहने के बाद वापस पलट आए। अब तुम लोग इत्मीनान और आराम से सो जाओ और सुनो, कल सुबह हम वैशी कबीले की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। मैं बुलंद आवाज में सिपाहियों से बोली, अब तुम्हारी रहनुमाई खुद मैं करूंगी। उनमें से किसी को ये जुर्रत नहीं थी कि पूछ सकता कि अब तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और सिपाही आपस में चैमगोइयां करने लगे और मैं और नसार के साथ खैमे के अंदर चली गई। अपने बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे गहरी नींद सो जाने में ज्यादा देर नहीं लगी और दूसरे रोज सुबह उठकर नाश्ते के बाद मुझे खजीरा की आमद का इंतजार था। वो अब तक नहीं आई। शुक्र रवानगी के लिए लश्कर तैयार था। तो किस सोच में है ए मामला? अचानक मुझे खजीरा की आवाज सुनाई दी और मैंने इधर उधर देखा तो मुझे नजर नहीं आई। खजीरा की आवाज फिर उभरी, मेरी खुशबू के पीछे पीछे चली आ, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। इन अल्फाज के साथ ही मैंने खजीरा की मखसूस खुशबू महसूस की और मैं अपने घोड़े पर सवार हो गई और नसार भी मेरी तकलीद में ऐसा ही किया और फिर हमारा लश्कर मुखालफ सिमत रवाना हो गया। हैरत की बात यह थी कि हम उसी तरफ से कल आगे बढ़े थे, गोया हमारा सफर आशिर की बस्ती की तरफ ही था। गुज़श्ता रोज दोपहर को हमने पड़ाव डालने के बाद जहां से अपने सफर का आगाज किया था, हम तकरीबन निसफ पहर की मसाफत तय करके वहीं पहुंचे और वहां से दो रास्ते दाएं और बाएं जानब जाते थे और गुज़श्ता रोज हमने बाएं जानब सफर का आगाज किया था, मगर हमारा लश्कर दाएं जानब बढ़ रहा था। गोया यही वह मकाम था जहां से हम रास्ता भटके। खजीरा की खुशबू मुझे अब तक महसूस हो रही थी और मैं उसी की रहनुमाई में लश्कर के आगे आगे चल रही थी और मेरे ही साथ नसार भी था और मालूम नहीं उसे भी खजीरा की खुशबू महसूस हो रही थी या नहीं, मगर उसके चेहरे पर मुझे इत्मीनान के आसार नजर आए। और दोपहर को हमने एक घाटी में पड़ाव डाला और उसी के साथ खजीरा की खुशबू गायब हो गई। उस वक्त मैं और नसार खाना खा रहे थे और जैसे ही खुशबू गायब हुई, नसार चौंक कर धीमी आवाज में मुझसे बोला, वो तो चली गई। इसका मतलब यही था कि उसे भी खुशबू महसूस हो रही थी। हाँ, मैंने सर हिलाकर तायद की, मगर मुझे यकीन है ए नसार कि जब हम यहाँ से रवानगी के लिए तैयार होंगे तो वह फिर आ जाएगी। और फिर मेरा अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ। जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो खजीरा की खुशबू लौट आई। वो आ गई ए अतून, नसार ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए पुरमसरत आवाज में बोला। और हाँ, मैंने भी महसूस कर लिया है। और उसी वक्त पीछे से एक घुड़सवार आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंच गया और मैंने चौंक कर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये वही जख्मी सिपाही था जिसकी वजह से अब तक इतनी ही खवारी हुई थी। उसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठाए हुए था। ए अतून देवी, जख्मी सिपाही मेरी सवालिया नजरों की जानब में बोला, मैं तस्दीक करता हूँ कि ये सही रास्ता है और मैं यहाँ से लश्कर की रहनुमाई कर सकता हूँ। अब मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत नहीं, मैंने सर्द मोहरी से कहा। वापस जा और लश्कर के साथ खामोशी से चला चल। वो खज्जल सा होकर मुड़ गया और जिस घुड़सवार के घोड़े पर वो बैठा था उसने मेरा इशारा पाते ही घोड़ा मोड़ लिया था।
आखिर जख्मी सिपाही सही रास्ते की तस्दीक ना भी करता तो मुझे यकीन था कि खजीरा मेरे लश्कर को सही रास्ते पर ले जा रही थी। सफर फिर शुरू हो गया और हम वो घाटी अबूर करके निस्बतन बुलंदी की तरफ बढ़ने लगे और शाम होने से पहले हम पहाड़ियों से घिरी हुई एक वादी में दाखिल हो गए और हम अब तक निस्बतन बुलंदी पर थे और दूर तक नशीब में हमें झोंपड़ियां ही झोंपड़ियां नजर आ रही थीं। अचानक खजीरा की बात मुझे सुनाई दी, ऐ माबला तेरी मंजिल आ गई है, यही इस वैशी कबीले की बस्ती है, अब मैं चलती हूँ। खजीरा की खुशबू गायब हो गई और मैंने हाथ बुलंद करके लश्कर को रुक जाने का इशारा किया और झोंपड़ियां अभी वहां से खासे फासले पर थीं और अभी तक हमारी चलाई हुई गोलियां उन तक नहीं पहुंच सकती थीं और कम अज कम मेरा अंदाजा यही था कि मैं नसार से भी अपने अंदाजे की तस्दीक चाहती थी और उन पर आग बरसाने के लिए हमें मजीद आगे बढ़ना जरूरी था। अगर वो हमारी बात ना मानते तो फिर मजबूरी थी और हम उन पर हमला कर सकते थे। मैंने नसार से अपने इन्हीं ख्यालात का आधार किया तो उसने मेरी बात से इत्तफाक किया और तजवीज़ पेश की कि मैं अमन की अलामत के तौर पर सफ़ेद झंडे लहराता हूँ और उनकी तरफ जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। अपने हिमरा में 2 सिपाहियों को भी ले जाता हूँ। नहीं, मैं तुझे उनकी तरफ अकेला जाने नहीं दूंगी, मैं बोली, और तेरे साथ मैं भी चलूंगी। नसार ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना किया मगर मैं नहीं मानी और तय ये हुआ कि हम दोनों के साथ सिर्फ एक सिपाही सफेद परचम बुलंद करके चलेगा और फिर लश्कर को वहीं रुके रहने का हुक्म देकर हम तीनों झोंपड़े की तरफ रवाना हो गए और खिलाफी तवक्का हमें वहां कोई इमारत बनी हुई नजर नहीं आई और मेरा ख्याल था कि कम अज कम बस्ती का सरदार पत्थरों से बनी किसी इमारत में रहता होगा और मेरे ख्याल में वो लोग बहुत ही पसमानदा थे जो उन्होंने अपने लिए कोई ऐसी इमारत नहीं बनाई। अभी हम बस्ती में दाखिल नहीं हुए थे कि अचानक झोंपड़ियों की तरफ से तेज किस्म की वहशियाना हू की आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे बीक वक्त सैकड़ों अफराद अपने मुंह से वैसी आवाजें निकाल रहे हों और किसी मतवक्का खतरे के पेश नजर हमने अपने घोड़ों की लगामें खींच ली और तेजी के साथ अपने हाथों में हाथें ले लीं और चंद ही लम्हे बाद मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। झोंपड़ियों में रहने वाले अपने अपनी झोंपड़ियों से निकलकर एक तरफ दौड़े चले जा रहे थे और उनमें औरतें, मर्द और बच्चे सभी शामिल थे। जो बच्चे दौड़ने के काबिल नहीं थे उन्हें मर्दों और औरतों ने अपने गोदों में उठा रखा था और वो हमसे इतने फासले पर थे कि अगर हम पूरी कुव्वत से भी चीखते तो शायद हमारी आवाजें उन तक ना पहुंचती। ये इन्होंने क्या किया और ये अचानक अपनी झोंपड़ियां छोड़कर किधर भागे जा रहे हैं, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। जरा ही देर बाद हम उस बस्ती में दाखिल हुए जिसकी झोंपड़ी अब खाली पड़ी थी और झोंपड़ी के तादाद से अंदाजा होता था कि उनकी आबादी कम नहीं थी और हम वहां रुके बगैर अपने घोड़े दौड़ाते हुए हमारा रुख अब मुखालिफ सिमत के पहाड़ों की तरफ था और हमने बस्ती वालों को उसी तरफ भागते देखा था और बस्ती से जब हम निकले तो उन लोगों को पहाड़ियों के बिल्कुल करीब पाया। वो हमें दूर तक पहाड़ों के दामन में फैले हुए नजर आ रहे थे मगर अब उनकी तादाद पहले की निस्बत कम मालूम हो रही थी। यकीनन उनकी कुछ तादाद पहाड़ों में दाखिल हो चुकी थी और फिर हमारे ही देखते वो हमारी नजरों से उजल हो गए। अभी तक हम पहाड़ों के करीब नहीं पहुंच सके थे और ये सूरत हाल हमारे लिए उलझा देने वाली थी। उन्हें हमने पहाड़ों पर चढ़ते हुए भी देखा था और फिर वो सब कहां गायब हो गए। अपने इस सवाल का जवाब हमें पहाड़ों के करीब पहुंचने पर मिल सकता था, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। यूं लग रहा है जैसे उन्हें इन पहाड़ों ने निगल लिया हो। ए खातून। नसार की बात सुनकर मैं चौंक उठी। कहीं ये पहाड़ अंदर से खोखले तो नहीं, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। अगर ये भी फर्ज कर लिया जाए ए आतून तो उनके दाखिल होने का रास्ता भी होना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल सपाट मालूम हो रहे हैं। और फिर भी चल एक बार बिल्कुल करीब जाकर और घोड़ों से उतरकर हम उनका जायजा लेते हैं। ये कहते हुए नसार ने अपने घोड़े से उतरकर उसकी लगाम थाम ली और मैं भी घोड़े से उतरकर नसार के साथ करीबी पहाड़ी के दामन की तरफ बढ़ी और हम पहाड़ के इतने करीब पहुंच गए कि उसे हाथ बढ़ाकर छू सकते थे और कुछ ही देर में सूरज भी डूब जाएगा। ए नसार, हमें तलाश का काम बहरहाल सूरज गुरूब होने से पहले कर लेना चाहिए। उसी वक्त मैंने आगे बढ़ते हुए एक खास बात महसूस की कि पहाड़ की जड़ में थोड़े थोड़े फासले पर कोहान से उभरे नजर आ रहे थे और बचपन से अब तक मैं पहाड़ों की आगोश में पली बड़ी थी और मुझे इसीलिए वो उभार गैर मामूली और गैर फितरी लगे। मैं एक उभार के करीब रुककर जमीन पर बैठ गई और उस पर हाथ फेर कर देखा और फिर मेरा हाथ उस उभार के एक नशीबी किनारे तक पहुंच गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी चारों उंगलियां अंदर दाखिल हो सकती हैं। सो मैंने उंगलियां दाखिल कर दी और फिर मैंने अपने बाएं हाथ की उंगलियां उभार के दूसरी जानब वाले किनारे में दाखिल दी और उसे
उठाने की कोशिश करने लगी। नसार मेरे करीब खड़ा हुआ हैरत से यह सब कुछ देख रहा था, मगर वो मुझसे कुछ बोला नहीं। अचानक जोर लगाते हुए मैं पीछे की तरफ लड़ गई और खिलाफ तवक्का वो संगी ढकना हल्का साबित हुआ था और उसी लिए अपने ही जोर में पीछे लड़ गई थी और जमीन से मैंने उठने में देर नहीं की। वो संगी जस्मा मेरे कदमों में पड़ा था और उसके अंदरूनी हिस्से से एक आहनी जंजीर उस कला में जाकर गायब हो गई जो ढकना हटने से पहाड़ की जड़ में पैदा हो गया था। वो खिला एक बड़े से सुराख की तरह था जिसके अंदर कोई भी शख्स बाआसानी दाखिल हो सकता था। उसके अंदर तारीकी नजर आ रही थी। नसार भी अब मेरे करीब ही बैठकर उस किला का जायजा ले रहा था और मैंने उससे कहा, वो लोग यकीनन इन्हीं सुराखे के जरिए पहाड़ों के अंदर दाखिल हुए हैं। फासले की वजह से हम उन्हें संगी ढकने उठाते और खला में उतरते नहीं देख सके और खला में दाखिल होने के बाद उन्होंने संगी ढकनों से मुंसलिक जंजीरें खींचकर ढकनों को दोबारा सुराखों पर रख लिया होगा। अभी नसार मेरी तायद या तरदीद में कुछ न कह सका था कि मैं उछल पड़ी और मेरे जिस्म से कोई शय टकराई थी। वो शय ऊपर से आकर नसार और मुझ पर गिरी और जब तक मुझे उस शय की हकीकत का इल्म होता मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे और मेरे जिस्म के गिर्द वो जाल इतनी मजबूती के साथ अपनी गिरफ्त कायम कर चुका था कि मैं अपने हाथ पैर हिलाने से भी कासर थी। ऐसे ही एक दूसरे जाल में मुझे नसार कैद नजर आया और दोनों जाल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते जा रहे थे। वो जो कोई भी थे उन्हें हमें बहुत आसानी से पकड़ लिया था। जाल ऊपर खींचते जाते रहे और मैं बेबसी से सब कुछ देखती रही और चंद ही लम्हे बाद मेरे सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। या तो ऊपर से कोई वजनी शय मेरे सर पर मारी गई थी या फिर ऊपर खींचते हुए मेरा सर किसी उभरे हुए पत्थर से टकराया था और मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए और फिर मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया और मैं अपने हवास खो बैठी। तारीकी, खामोशी, सुकून और फिर चेहरे पर ठंडक का एहसास हुआ तो मेरे एहसासात दोबारा अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगे और मेरे ज़हन पर अब तक गनूदगी सी छाई हुई थी कि खुली आंखों से मैंने एक ख्वाब सा देखा। एक मलीह चेहरा, स्याह आंखें और पुरकशिश, तीखे खदोखाल और खूबसूरत होंठ जिन पर मुस्कुराहट थी। जब मेरा शऊर उसके लम्हे से बेदार हुआ तो मैंने देखा वो एक वजीह नौजवान था जो अपना सर अपनी गोद में रखे बैठा था और किसी जानवर की खाल में मलबूस उसके जवान और गठीले जिस्म का तनाव बहुत हसीन मालूम हो रहा था। उसके बाजुओं की मछलियां उभरी हुई थी और वह सर पर बड़े बड़े बाल थे जो छानों तक लटक रहे थे और मुझे होश में आता देखकर वो मुस्कुराया और फिर उसने एहतियात से मेरा सर उठाकर पानी से भरा हुआ छोटा सा मशकीदा मेरे होंठों से लगा दिया। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी और पानी पीकर मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। वो नौजवान मुझे तरहम नामीद निगाहों से देख रहा था। तू कौन है? मैं उठकर बैठ गई। खसीफ का खिदमतगार। नौजवान की मुस्कुराहट मालूम हो गई। तेरा नाम? सामर, नौजवान ने जवाब दिया। और तेरी तरह तेरा नाम भी मुझे अच्छा लगा। मैंने दानिस्ता उसकी तारीफ की और उसके चेहरे पर वही लड़कियों की तरह सुर्खी फैल गई। उस नौजवान के हयात मेरे लिए तअज्जुब खेज थी और फिर मैंने उससे दरियाफ्त किया कि क्या मैं तुझे उसी जगह और उसी हाल में बेहोश मिली थी? नहीं, नौजवान बताने लगा कि तू हसीफ के गुलामों की कैद में थी। तू मुझे बहुत भोली और लगी और मैं समझ गया कि वह तुझे बहुत जल्द हसीफ के सामने पेश कर देंगे और फिर तू हसीफ की हवस का शिकार हो जाएगी। वो तुझे पामाल कर देगा। तो मैंने हसीफ के गुलामों को मस्त कर देने वाला मशरूब पिलाकर कत्ल कर दिया और तुझे यहाँ उठा लाया और मौका मिलते ही तुझे फरार करा दूं। तू जख्मी पड़ी थी और तेरे सर से जख्म के खून बहकर जम गया था और तुझे देखकर पहली बार मुझे ये शुबा हुआ कि तू मर चुकी है, मगर तेरे अंदर का लोथड़ा तो फड़फड़ा रहा था। क्या वहाँ मेरे अलावा भी कोई और कैदी था? ऐसा अमर, मैंने बेचैनी से सवाल किया और मुझे नसार का ख्याल आ गया। हाँ, वहाँ तू अकेले ही थी और मुझे कोई नज़र नहीं आया। तू अगर मुझे वहाँ से ना निकाल लाता ऐसा अमर तो शायद मेरी ज़िंदगी ना बचती। मैं तेरी ममनून हूँ, लेकिन तू शायद अब भी जिंदा नहीं बचेगी। नौजवान सामर पुरतशवीश आवाज़ में बोला। क्या मतलब है तेरा? ये जगह महफूज नहीं है। जल्द ही कत्ल होने वाले तीनों गुलामों का राज खुल जाएगा और फिर वो तेरी तलाश शुरू हो जाएगी। तू उनकी निगाहों में आ गई तो वो तुझे उसी अपने साथियों का कातिल समझेंगे और फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत सफाक और बेरहम है। मैं इस दौरान में ये देख चुकी थी कि मेरे जिस्म पर एक भी हथियार मौजूद नहीं। यकीनन उन्होंने मुझे बेहोशी के दौरान में बिल्कुल गैर मसला कर दिया था और मैंने इस अरसे में अर्द गिर्द का जायजा ले लिया। एक तरफ मुझे एक बड़ा सा सुराख नजर आया जिसमें रोशनी थी और मैं समझ चुकी कि खफीफ इस वैशी कबीले का सरदार है जिस पहाड़ के अंदर रहता है। सामर मुझे अपने बारे में बता ही चुका था और वह हसीफ का खिदमतगार है। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो भी गोया दुश्मन ही का आदमी था।
और आंखें बंद करके उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ना उसे हसीफ के खिलाफ कोई बात की जा सकती थी। क्या ये सुराग सरदार हसीफ के ठिकाने तक जाता है? मैंने मोहतात लहजे में सामर से पूछा। हाँ, सामर ने इस बात में सर हिला दिया। उस तरफ से हसीफ के गुलाम आ सकते हैं। अब उठ और मेरे साथ चल, मैं तुझे महफूज जगह दिखाता हूँ। ये कहते ही वो उठ खड़ा हुआ और मुझे भी वहाँ से उठा लिया, और मैंने अपने सर के जख्म को टटोला और हल्की सी चपचपाहट महसूस हुई। उधर उधर बालों में गालबन खून जमा हुआ था जो सख्त हो रहे थे। उस वक्त बार बार मेरे ज़हन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर सामर ने मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जताई, और ये सब कुछ बेमकसद तो नहीं हो सकता। और उसने मेरे खातिर बहरहाल 3 अफराद को कत्ल कर दिया था, और मैं पूरी तरह चौकन्ना थी। सामर अब मुझे उस गार में अंदर की तरफ ले जा रहा था। गार का दहाना आकर नज़रों से उजल हो गया, और घूम फिर कर मैं सामर के साथ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां दाएं बाएं ऊपर की तरफ बहुत से छोटे बड़े सुराग थे, और ये जगह खुले आम गुदरगाह से हटकर थी, और दोनों तरफ एक पतला सा रास्ता भी खाता हुआ ऊपर सुराखों तक जाता था। दिन की रोशनी देखकर अब मैं समझ चुकी कि मैं सारी रात बेहोश रही, और अभी दिन का आगाज ही मालूम होता था। इनमें से किसी सुराख के अंदर छुप जा, यहाँ तो महफूज रहेगी, सामर ने रुकते हुए कहा, और मैं उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। क्या बात है? वो मुस्कुराया। तो मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहा है? मैं अपने अंदेशे को जुबान पर ले आई। मुझे शक की नज़र से मत देख, सामर तुझे धोखा नहीं देगा। वो संजीदा हो गया। तू ऊपर चली आ, मैं भी आता हूँ, और तेरे लिए मैं कुछ खाने को भी ले आऊँगा, और तू जख्मी भी तो है। फिर मैंने सामर के चेहरे पर एक नज़र डाली, फिर सुराखों तक जाने के लिए बाएं जानब के तंग रास्ते से ऊपर चढ़ गई। ऊंचाई पर पहुंचकर मैंने सामर को देखा। वो एक सुराख में घुस गया, और पहाड़ का ये रास्ता मुझे दूसरे रुख मालूम हुआ था, क्योंकि दूर तक ऊंचे ऊंचे टीलों और चट्टानों के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे बाहर सामर की आशना आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे पुकार रहा था। मैं उठकर ऊपर जाने के लिए उसके पास पहुंच गई, और मैंने सामने के सुराखों से सामर को देख लिया। उसके हाथ में एक पोटली थी, और मैंने सर निकाल कर नीचे का जायजा लिया, और पूरा इत्मीनान कर लेने के बाद सामर को आवाज़ दी, मैं यहाँ हूँ ऐ सामर। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, क्योंकि इस दौरान में किसी मुमकिन खतरे से बचने के लिए मैंने वह सुराख बदल दिया था, और जहाँ सामर मुझे छोड़ गया था, अब मैं एक और सुराख में थी, और फिर वह मेरे पास पहुँच गया, और मैं सुराख के अंदर खिसक गई, और वो भी अंदर आ गया। तू इधर क्यों चली आई? मैं तुझे वहाँ नापक परेशान हो गया था, वो पोटली खोलते हुए बोला, और मैं ये इत्मीनान कर लेना चाहती थी कि कहीं कोई और तो तेरे पीछे लगकर यही नहीं पहुँच गया। मैंने बात बना दी। बड़ी चालाक है तू। वो मुस्कुराया, और फिर मेरे सामने भुना हुआ गोश्त रख दिया। गोश्त खाकर मैंने पानी पिया। मचकीदा उसके कंधों से लटक रहा था, और फिर माँ ने ख्याल आया कि कहीं सामर उसमें से मेरा जूठा पानी ना पी ले। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में वो जिंदा नहीं बढ़ सकता था, और अभी मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी। मालूम नहीं पहले मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया, और पहले भी मैं होश में आकर मैंने उस मशकीदे से मुंह लगाकर पानी पी चुकी थी। अगर इस दौरान में सामर को प्यास लग जाती तो फिर जाने क्या होता। मैं इसी सुराख में उसका इंतज़ार करती रहती, और वह सफ़र आखिरत पर रवाना हो जाता, और मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि उसे मशकीदा नहीं ले जाने दूंगी। जब मैं गोश्त खाकर पानी पी चुकी तो सामर ने एक भिड़ेंगी सी चोबी डबिया पोटली से निकालते हुए कहा, तू जख्मी भी तो है। फिर वो डबिया से जड़ी बूटियों का स्याह बदबूदार मलबूबा निकाल कर मेरे सर के जख्म पर थोपने लगा, और सामर घुटनों के बल खड़ा होकर मेरे सर पर दबा लगा रहा था, और यूं उसका गठा हुआ जिस्म मुझसे बहुत करीब आ गया। अब के मैं तेरे लिए खाल भी लेता आऊँगा ताकि तू सर्दी से बच सके। सामर ने बैठकर एक तरफ समझकीदा रख दिया और मेरी तरफ देखने लगा। मेरी उसकी नज़रें आपस में उलझ गईं, और मैंने महसूस कर लिया कि सामर की आंखों में उसके कहे हुए जज्बों की दास्तान थी। और फिर अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, और फिर उसकी पुष्ट पर अपने खूबसूरत कांपते हुए होंठ रख दिए। उसके होंठों की हरारत मैंने अपने सारे जिस्म में फैलती हुई महसूस की, और मैंने दानिश का उसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ाया। वो लम्हे शायद सामर की ज़िंदगी का हासिल थे, मगर उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया और सर उठाकर बोला, तूने मुझे अपना नाम नहीं बताएगी? उसकी आवाज़ मरतज थी। तू मुझे आतून कह सकता है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, और फिर मैंने उसे चौंकते हुए देखा। आतून? क्या तेरा यही नाम है? उसके लहजे से खौफ का धार हो रहा था। क्यों? तू खौफजदा क्यों हो गया? मैंने दरियाफ्त किया। इसलिए कि मैंने हसीफ की ज़बान से कई बार ये नाम सुना है। सामर ने बताया कि तेरे दाएं शाने पर सांप के फन का निशान भी है क्या? हाँ है। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। तो फिर तू वही है, वही आतून है जिसका इंतज़ार वो एक मुद्दत से कर रहा है।
वो कई बार कह चुका है कि तू एक दिन जरूर आएगी और फिर वो जवान हो जाएगा, वो दोबारा जवान हो जाएगा। सामर ने रुक रुक कर बताया। मगर क्यों और कैसे ये मुझे नहीं मालूम, मगर चंद रोजों से यही कहते सुना गया है कि आतून बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाली है और मैंने उसकी रूह को कैद कर लिया है और वो अपनी रूह को मेरी कैद से आजाद कराने जरूर आएगी। सामर की बात सुनकर मैं चकरा कर रह गई। आखिर हसीफ को मेरा नाम कैसे मालूम था? ना सिर्फ नाम बल्कि वो मुझे जानता भी था और मेरे दाएं शाने पर सांप के फन का निशान है। उसे क्यों यकीन था? एक रोज मैं उससे जरूर आऊंगी। अलबत्ता उसका इशारा मेरी समझ में आ गया कि मेरी रूह को कैद करने से उसकी मुराद शायद महापुजारी और अहरस से थी जो उसकी कैद में था। अच्छा ऐतून, अब मैं चलता हूँ, सामर अचानक बोला। मेरी ज्यादा देर गैर हाजिरी हसीफ के लिए मेरी तरफ से शक व शुबे में मुब्तला कर सकती है। मैं फिर आऊंगा, मगर तू यहाँ से बाहर मत निकलना। और फिर वो अपनी चीजें समेटने लगा। मैंने मशकीदा अपनी तरफ घसीटते हुए उससे कहा, इसे यहीं छोड़ दे, मुझे प्यास लगी तो पानी पी लूंगा। उसने मशकीदा मेरे पास ही छोड़ दिया। मैं अभी उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर उसे मेरे पास वाकई बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुश्तबा हो जाए और मैं रफ्ता रफ्ता उससे कुछ मालूम कर सकती थी और जल्दबाजी से काम बिगड़ भी सकता था। इस पनाह गाह में मुझे 2 दिन गुजर चुके थे। सामर इस अरसे में वहां कई बार आया। वो अब पूरी तरह मेरी दामे मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, मगर मैंने उसे अब तक हद से तजावज़ नहीं करने दिया। यूं भी उसे बड़ी हद तक अपने जज्बात पर काबू था और मेरे माथे पर खफीफ सी शकन देखकर भी वो संभल जाता था। उसकी दवा ने हैरत अंगेज असर दिखाया और मेरे सर का जख्म भर गया और बातों ही बातों में सामर से मैंने बाद अहम मालूमात हासिल कर ली। ये मालूमात महापुजारी आहरस और निसार की आज़ादी के लिए थी, मनसूबा बंदी में मददगार साबित हो सकती थी। सामर ने महापुजारी और आहरस का जिक्र किया था, जिन्हें चंद रोज पहले हसीफ के ही के हुक्म पर कैद कर लिया गया था और खुद हसीफ ने अपने गुलामों को उस तरफ भेजा था जहां से वो शिकारी काफिला गुजरने वाला था और हसीफ के गुलाम पहले ही से उनकी घात में वहां बैठ गए। और मेरे लिए ये समझना मुश्किल था कि हसीफ को इस काफिले की गुजरगाह का पहले से इल्म किस तरह हो गया। और इस सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ यही था कि हसीफ यकीनन कुछ पुरइसरार कुव्वतों का मालिक था। सामर से मुझे ये भी मालूम हो गया कि आहरस और महापुजारी अलग अलग कैद किए गए हैं और अभी तक मैंने सामर से कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि वह बदक जाए, लेकिन मुझे यकीन हो चुका कि उसकी मदद से मैं उसकी जगह तक पहुंच सकती हूँ जहां आहरस और महापुजारी को कैद किया गया। अब मैं उसे मुट्ठी में लेने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन उसके लिए बहरहाल हद से गुजरने पर आमादा नहीं थी। मुझे एतराफ़ है कि मैं खुद गर्दी के तहत उससे जज्बात से खेल रही थी और यूं उसकी हमदर्दी हासिल करके उसे अपने मकसद के हसूल की खातिर आला कार बनाना चाहती थी। वो मासूम और भोला बाला सा नौजवान मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुका था। जब उसके होंठों की हरारत मेरे अंदर मुंतकिल हो गई तो उसने मुझे सरशारी सी नज़रों से देखा और मैं उसके चौड़े चकले सीने के बालों से खेलती हुई फौरन मतलब की बात पर आ गई। सामर, आज मुझे हसीफ के बारे में कुछ बता। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नजर आने लगे। वो शैतान आज क्यों याद आ गया? उसने नफरत से होंठ सकेड़ लिए और आज पहला मौका था कि उसने अपने आका से इस तरह के ख्यालात का इजहार किया था और मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मगर लगता है कि तू उससे बहुत नफरत है तुझे। हाँ, मगर आज तू मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएगा। लेकिन क्यों? तू आखिर उस बेड़िए के बारे में क्यों जानना चाहती है? मैं तुझे उससे निजात दिलाना चाहती हूँ। तेरी खातिर मैं उससे टक्कर लूँगी और उसे ऐसा तभी मुमकिन है कि तू मुझे उसके बारे में वो सब कुछ बता दे जो तुझे मालूम है। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था और उसके करीब हो गई। मुझे मालूम था कि मेरा लमस उसके जज्बात के लिए मुहिम का काम करेगा और उसके जज्बात से मैं खेल रही थी और जल्द ही उसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से तमतमा उठा। आतून, वो ख्वाब के आलम में बोला, क्या तू भी मुझसे मोहब्बत करने लगी है? हाँ ऐ सामर, तुझ पर अब मेरा हक है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ से निकल चलें। और खिलाफ तवक्का वो मुझे बस मुर्दा सा दिखाई दिया। काश ये मुमकिन होता ए आतून, उसकी आवाज़ में हसरत थी। मैं जानता हूँ वह शैतान मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसकी टांगें चीर सकता हूँ मगर वो कभी मेरे मुकाबले नहीं आएगा। वो तो अपनी शैतानी कुव्वतों से काम लेगा और ए आतून, यकीन कर कि मैं बेबस हो जाऊँगा। क्या उसके पास ऐसी कुव्वतें हैं? मैंने उसे खरीदने की खातिर सवाल किया। हाँ, पहले तो मुझे सब कुछ बता ए सामर, और फिर कोई फैसला मैं कर सकूंगी। मुमकिन है मैं तुझे कोई बेहतर मशवरा दे सकूं। और यहाँ से कुछ दूर स्याह चोटी वाले पहाड़ की धुआं उगलती हुई चोटी पर ज़ाहिर हुआ था। सामर अपने आका के बारे में तफसील से बताने लगा
उसने खुद को हरबाश देवता का हरकारा बताया जो कबीत के रहने वालों के लिए रहमत व बरकत लेकर आया, और उसने दावा किया था कि वह कबीत की औरतों को नर औलाद बख्शेगा और दुश्मन अब उन पर हावी कर देगा। तब कबीत वालों ने उसे सजदा किया और उसने पहाड़ों के बीच में से ठिकाना बना लिया। कबीत वालों ने उसे अपने बच्चे और उसकी गुलामी में दे दिए और वो अपनी कंवारियों को उसकी खिदमत में पेश कर दें। अब भी हर कंवारी पर पहले उसका हक समझा जाता है, वो जिसे पसंद करता है और अपनी खिदमत के लिए रख लेता है, और जिसे चाहता है दूसरों को बख्श देता है। सामर के लहजे में नफरत और हकारत थी। मैं उसके एक एक लफ्ज़ को तवज्जो से सुन रही थी। मैं अब जान चुका हूँ कि वो कोई शैतान है जो हर याश देवता का हरकारा बन बैठा है। उसका हर खिदमतगार और हर खात्मा उससे नफरत करती है, मगर सब मजबूर हैं। हम उसकी शैतानी कुव्वतों से खौफजदा हैं। क्या तू उसकी असलियत जानता है? वो दर हकीकत कौन है, कहाँ से आया है? नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वह हम कबीत वालों के लिए लानत का देवता बनकर आया है। अच्छा ये बता कि जो नौजवान हसीफ की कैद में है उसे क्यों कैद किया गया? मैंने सवाल किया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बहुत अरसे पहले हसीब ने अपने गुलामों को हुक्म दिया था कि वो कबीर तक से निकलकर दूर दूर तक फैल जाएं और कोई ऐसी कंवारी तलाश करके लाएं जिसके दाएं शाने पर सांप के फन का निशान हो। उसके गुलाम अरसा दराज के बाद नाकाम लौट आए और फिर अभी कुछ रोज पहले उसने एक काफिले के उधर से गुजरने की खबर दी। उसने नौजवान कैदी और उसके साथी बूढ़े का हलिया बताया और कहा कि तुम उन्हें पकड़ कर ले आओगे। तो वो सांप के फन वाली कंवारी आतून खुद ब खुद एक रोज मेरे पास उस पहाड़ के भी पेट में पहुंच जाएगी, सामर ने बताया। मेरी उलझन कम होने की बजाय और बढ़ गई। शायद सामर भी असल बात नहीं जानता था, मगर मुझे यकीन था कि यह कोई गहरा चक्कर है। क्या वो नौजवान अभी तक महफूज है? मैंने अहरस के बारे में अपनी इत्मीनान की खातिर पूछा। हाँ, हसीफ अभी तक उससे नहीं मिला। उस नौजवान को हसीफ ने अपने खिदमतगारों की निगरानी में रख छोड़ा है। उनमें खादमाएं भी हैं जो उस नौजवान का बहुत ख्याल रखती हैं। ये हसीफ का हुक्म है कि वह नौजवान अगर उनसे जिस्मानी आसूदगी भी हासिल करना चाहे तो इनकार ना किया जाए। तो क्या कभी उस नौजवान ने किसी खादमा से? मैं कोशिश के बावजूद अपनी बात पूरी ना कर सकी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया ऐतून कि तू क्या पूछना चाहती है। सामर बोल उठा। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इन खादमाओं को अपने करीब देखकर और भड़क उठता है। सामर से ये सुनकर के ना जाने क्यों मेरे दिल को एक इत्मीनान सा हुआ। अब सामर कह रहा था कि अगर हसीफ के गुलाम और खिदमतगार भी उसकी निगरानी ना कर रहे होते तो वो अब तक उन खादमाओं को हलाक करके भाग चुका होता। ऐ सामर, क्या तू भी उस नौजवान कैदी के पास जाता रहता है? मैंने कुछ सोच कर पूछा। हाँ, मुझे उस पर बहुत रहम आता है। अगर मैं उसकी मदद कर सकता तो उसे यहाँ से निकाल देता। वो बहुत खूबसूरत नौजवान है, किसी देवता की तरह। ना जाने वह बूढ़ा बेड़िया उसका क्या हशर करेगा। सामर ने अजहार तासुफ किया। वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। बेख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए। सामर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, ये तूने कैसे कह दिया? अगर तू मेरा साथ दे ऐ सामर, हम उस नौजवान को यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं दिल की बात जुबान पर ले आई। सामर के चेहरे के तासरात बदल गए और वह मुझे उलझी उलझी नजरों से देखने लगा। तुझे उस नौजवान से क्या हमदर्दी है? सामर ने अजीब से लहजे में पूछा। वो मेरे कबीले का नौजवान है, मैंने कह दिया। ये तू क्या कह रही है आतून? सामर की आवाज़ में गैर यकीनी कफियत थी और कुछ अजीब सी सोगवारी भी। मैं ठीक कह रही हूँ ऐ सामर, वो हमारे सरदार का बेटा है और मैं उसे हसीफ की कैद से रिहाई दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने मसलहत के तहत हकीकत को झूठ के लबादे में छुपा लिया। तूने ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपाई? सामर ने शिकवा किया। पहले तूने पूछा ही कब था? मैं मुस्कुरा दी और फिर मशल की जर्द रोशनी में सामर के साथ मैं तंगो तारीख सुरंगनुमा रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। सामर इस वक्त बिल्कुल खामोश था। वो कुछ हरासा मालूम हो रहा था और मैं ये जानती थी कि वह महज मेरी खातर जान हथेली पर रखकर इतना बड़ा खतरा मोल लेने पर तैयार था। और मैं भी अपने जिस्म में सनसी की सी कैफियत महसूस कर रही थी। मेरे सर पर भेड़िए की खाली खोपड़ी थी और बाकी खाल चारों तरफ इस तरह लटक रही थी कि मेरा मुंह भी उसमें छुप गया था और मेरी आंखों के सामने दो सोराख थे और मेरा एक हाथ में मशल और दूसरे में चौड़ा खांडा था। और ये तीनों चीज़ें मैंने हसीफ के एक गुलाम को कत्ल करके हासिल की थी, जिसे सामर बहला फुसला कर मेरी पुनाह गाह तक ले आया था और मैंने उसे बाआसानी ज़ेर कर लिया। और भेड़िए की ये खाल मुझे अपना चेहरा और ऊपरी जिस्म छुपाने में बड़ी कारआमद साबित हुई। यहाँ तक मैं और सामर किसी मज़ाहमत के बगैर पहुँच गए थे। हसीफ के गुलामों से बहुत कम टकराव हुआ और पहाड़ों के पेट में तो जैसे एक दुनिया आबाद थी। अजीब पुरपेश दुश्वार गुजार रास्ते बने हुए थे और जिनकी तामीर में इंसानी हाथ बहुत कम दखील थे।
और मैं अगर अकेली होती तो सरिंगों के इस जाल और रास्तों की भूल भलियों में भटक कर रह जाती। मुझे सामर की रहनुमाई हासिल थी, जो हर पीछो गम से आगाह था, और चलते चलते अचानक सामर एक कुशादा दरार के करीब रुक गया। क्यों, क्या बात है? मैंने सरगोशी की। अब यहाँ से तुम अकेली आगे जाओगी, सामर ने भी सरगोशी में जवाब दिया। इस दरार के खात्मे पर बाएं जन्म वो रास्ता है जिससे गुजर कर तुम उस जगह पहुंच जाओगी जहां तुम्हारे सरदार का बेटा मौजूद है, मगर यहाँ तुम्हें कदम कदम पर हसीफ के गुलामों से निमटना पड़ेगा। मैं उनसे निमट लूंगी, तुम फिक्र ना करो। मैंने सामर के शाने पर थपकी दी। मैं हसीफ के 2 गुलामों को ठिकाने लगाकर उस जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गई जहां अहरस कैद था, और उन 2 गुलामों को मुझे इसलिए मौत की नींद सुलाना पड़ा था कि उन्होंने मुझे से मेरी शिनाख्त तलब की थी और खाल उतार कर चेहरे दिखाने के लिए कहा था। दस्ते कुदरत से तराशीदा वो एक कोठरी सी थी जिसकी ऊंचाई पर दीवारों में कई बड़े बड़े सुराख थे और चारों तरफ कई मशीलें रोशन थीं। कोठरी के वस्त में एक बड़ी सी चट्टान पर खालों का बिस्तर बिछा हुआ था और उस पर अहरस बेसुध पड़ा था, और चंद ही दिन में उसकी सेहत बुरी तरह गिर गई थी। वो पहली ही नज़र में मैं पहचान ना सकी कि वो वाकई अहरस है। या तो उसे खुराक बहुत कम दी जाती थी, या फिर वो खुद ही गुस्से और झंझलाहट में कुछ खाता पीता नहीं था। वो बहरहाल मेरे बचपन का साथी और दोस्त था। उसे इस हालत में देखकर मुझे दुख हुआ। चट्टान के साथ नीचे फर्श पर 4 हसीन नौजवान लड़कियां नींद में खोई हुई थीं। मैं अंदर दाखिल हुई तो अहरस ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और मेरा दिल कांप उठा। वहशतज़दा और खोई खोई सी सोगवार निगाहें, बुझा बुझा चेहरा जिसकी तरोताजगी सब्ज़दारों को मात कर जाती, आज वो चेहरा किसी खसां रसीदा फूल की तरह मुरझाया हुआ था। अहरस, मैंने दिल की गहराइयों से उसे पुकारा और भेड़िए की खाल उतार दी। अहरस एक झटके से उठकर बैठ गया। वो यकीनन मुझे वहां देखकर शशदर रह गया था और उस पर सख्ते की सी कफियत तारी हो गई, मगर ये लम्हाती असर था। आतून उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। हाँ अहरस, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी आतून। मैं खांडा लेकर उसकी तरफ लपकी। मशल पहले ही मैं फेंक चुकी थी क्योंकि उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी, वही वहाँ खासी रोशनी भी थी। अहरस करब अमीज अंदाज में सिकता हुआ उठकर मेरे करीब आ गया और मैंने देखा कि नकाहा से उसके पैर कांप रहे थे, और मुझे इस लम्हे ये शुबा हुआ कि शायद उसे कोई नशा आवर मशरूब भी पिलाया जाता है, और ये सोच कर कि वो कहीं गिर ना जाए उसे मैंने अपने बाजुओं में ले लिया। वो नडाल सा मुझ से लिपट गया, और ज़िंदगी में पहला मौका था कि अहरस मेरे इतने करीब आया, और चंद ही लम्हों मेरे जहन पर उसके करीब का खमार से छा गया, और मेरे बाजुओं की गिरफ्त उसके गर्द मजीद सख्त हो गई, और मैं कुछ ही देर को सब कुछ भूल गई, और मुझे ये भी होश नहीं था कि खतरे को महसूस कर सकती जो बेदार हो चुका था। मुझे आतून यकीन था कि तो जरूर आएगी। अहरस की आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। अहरस की गिरफ्त मेरे जिस्म पर ढीली पड़ती जा रही थी। उसका जहन शदीद अचानक इतनी बड़ी खुशी और कफियत को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उस पर नींद बेहोशी सी तारी थी, और मैंने उसे संभाल लिया और फिर जरा देखकर उसे नरम खानों के बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं, और उसी वक्त कुछ शोर सा हुआ और मैं चौंक कर ऊपर देखा। सुराखों से हसीफ के मसला गुलाम नीचे कूद रहे थे, और उन्हें देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया, और मैंने लपक कर अपना खांडा उठा लिया। अहरस तक पहुंचने के बाद अब मैं कोई ऐसी रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो मेरी कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दे, और मेरी रगों में खून और खौल उठा। बाजों में बिजलियां तड़पने लगी और आंखों में आतिश फशां भड़कने लगा, और मैं हमलावारों के लिए कहर की देवी बन गई, और मेरा खांडा बिजली की तरह तड़प रहा था। हसीफ के गुलाम जिंदगी की कैद से आज़ाद होने लगे, और मेरे हलक से ऐसी गुराहटें निकल रही थीं जैसे कोई शेरनी गीदड़ों के हजूम में घिर गई हो, और सहमी हुई लड़कियां एक गोशे में सिमटी थर थर कांप रही थीं। और मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि हसीफ के गुलाम मुझे कोई जख्म लगाने की बजाय मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं गैज़ो गज़ब में होने के बावजूद हर तरफ से बाखबर थी। किसी को भी मेरे करीब फटकने का मौका नहीं मिल सका। गुलामों की आमद का तांता बंध गया, और एक मरने वाले की जगह 4 गुलाम ले लेते, और उन्होंने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया था। अब मुझे खांडा चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी, और मरने वालों की चीखें और हथियारों के टकराने का हैबतनाक शोर अहरस को भी जैसे होश में ले आया। गालबन खिलाफे तवक्का सूरत हाल देख कर ही उसके मुंह से चीख निकल गई, और मैंने ठटक कर उसकी तरफ देखा, और यही मेरी गलती थी। हसीफ के गुलामों ने मुझ पर धावा बोल दिया, और मैं बेबस हो गई। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, और मेरी मुश्किल कस दी गई, और मेरी आंखों में एक चर्बी टुकड़ा बांध दिया गया। वो शैतान की अंत की तरह बल खाती हुई कोई सुरंग ही थी।
जिसने मुझे कई हाथों ने जोर से उठाकर फेंक दिया और मेरी मुश्कें बंधी हुई थी और मैं लड़कते हुए पत्थर की फटकनियां खाती नशीब की तरफ फिसलती चली जा रही थी। चोटों और दर्दों की शदीद अजियत ने मुझे होशो हवा से बेगाना कर दिया। सुरंग ज्यादा तवील साबित हुई। उसके इख्तिताम पर लम्हे भर को मैंने अपना जिस्म खिलाफ में महसूस किया और कोल्हों के बल जमीन पर ठोस जमीन पर जा गिरी। शदीद चोट आई मगर मैं बर्दाश्त कर गई और फिर कई हाथों ने मुझे खींच तान कर खड़ा कर दिया और वो मुझे खींचते हुए किसी तरफ ले चले और मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म जैसे किसी सतून के साथ मजबूती से बांध दिया गया और फिर किसी ने मेरी आंखों पर बंधा हुआ चरमी टुकड़ा खींच लिया। तेज रोशनी के सबब मेरी आंखें चुदिया गई। चंद लम्हों के बाद मैंने कुछ देखने के काबिल हो सकी और मैंने गिरदो पेश का जायजा लिया और यूं लगा मुझे पाताल में फेंक दिया गया था, मगर नहीं, मैं यकीनन पहाड़ के पेट में थी। खुरदरी और कई फटी संगी दीवारों से घिरी हुई वो बहुत कुशादा सी जगह थी। मेरी नजरें इधर उधर से पलटकर जब अपनी दाएं बाएं उठी तो मैं चौंक उठी और मेरी ही तरह दाएं जानब एक संगी सतून से नसार बंधा हुआ नजर आया और उसी के बाद जरा फासले पर एक और सतून से महापुजारी बंधा हुआ था और वो दोनों ही मुझे बेहद नडाल नजर आ रहे थे और बाएं जानबी संगी सतून थे। पहले सतून से आहरत और फिर बकिया दो सतूनों से एक बूढ़ा और एक नौजवान बंधा हुआ था और वो दोनों ही मेरे लिए कतई अजनबी थे। 6 सतूनों के अलावा वहां नीम दायरे की सूरत में एक सतून और था मगर वो खाली था। बारी बारी नसार और महापुजारी से मेरी नजरें मिली और पलट आईं और खिलाफी तवक्का उनके चेहरे सपाट और बेतासर थे, जैसे वो दोनों अपने हवासों में ना हों। अहरस तो पहले ही से नींद में होश था और मेरा ये शुबा अब यकीन में बदलता जा रहा था कि इन तीनों को कोई ऐसा मशरूब पिलाया गया है जिसने इनके जिस्मों को शल और ज़हनों को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया है। अहरस और महापुजारी की हालत इन दिनों से ज्यादा खराब लग रही थी और वो दोनों ज्यादा अरसे से कैद में थे। नसार फिर भी उन दोनों से कदरे बेहतर हालत में नजर आ रहा था और मेरी नजरें कुछ देर में गर्दो पेश का जायजा लेने के बाद उस मज़का खेज सूरत वाले मदकूक मजबूर शख्स पर मरकूज हो गईं और मेरे अंदाजे के मुताबिक वही हसीफ हो सकता था जो खुद को हरबाश देवता का हरकारा कह रहा था। खुश आमदीद ए मेरी कुर्बानियों और ए मुझे नई जिंदगी देने वालों, तुम सब इस वक्त हरबाश के हरसारे हसीफ के सामने खड़े हो। बूढ़े हसीफ के होंठों से खरखराती हुई आवाज बुलंद हुई और ये वक्त एक मुद्दत के बाद आया है कि 7 कुर्बानियां हर बाश ने मेरे लिए यकजा कर दी और ए शाम की फन वाली तेरा तो मुझे एक मुद्दत से इंतजार था। वो मुझसे मुखातब था और मैं उस पर हैरान थी कि वहाँ सतूनों से सिर्फ 6 अफराद बंधे हुए थे और 7 का जिक्र हो रहा था, मगर कुछ देर और वहाँ गुजारने के बाद मुझे 7वीं कुर्बानी का इल्म भी हो गया। हसीब अब अपनी गैर इंसानी सी आवाज़ में कह रहा था। वो मेरी ही तरफ मतवज्जा था और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखों में दहकते हुए अंगारे मेरे जिस्म को जला दे रहे हों। और सुन ए शाम के फन वाली, मैं तुझे तेरे इसी नाम से पुकारूंगा जिससे तू जानी पहचान जाती है। मैं तेरा असल नाम जानता हूँ मगर तेरा पर्दा रखूंगा। तुझे मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है और तू ही मेरी वो आखिरी कुर्बानी है जिसके बाद एक नई जिंदगी मुझे मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं ये जिक्र नहीं करता। तुझे तो ए शाम के फन वाली आतून अभी चंद रोज और जीकर मुझ पर कुर्बान होना है। आज तो पहली कुर्बानी का दिन है और उस कुर्बानी को बहुत जल्द इस कुर्बान गाह तक लाया जाने वाला है और बहुत ही हसीन और नाजुक है वो कुर्बानी। मैं उसे बरत चुका हूँ। नहीं, अचानक मेरी जानब बंधा हुआ नौजवान पूरी कुव्वत से चीख उठा, तू हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता ए मनहूस बुढ़े। ए मेरे दुश्मन के बेटे सागून, तेरे चीखने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तेरी हसीनो नौजवान महबूबा अब कुंवारी नहीं रही। उसके साथ मैं कई हसीन यादगार रातें गुजार चुका हूँ। और सुन, अगर सुनने की तार में तुझे में ताब है तो ए सागून के तेरी महबूबा मुझसे खुश थी, मगर आज क्योंकि 7वीं कुर्बानी जमा हो चुकी है और इसलिए पहली कुर्बानी ज़रूरी है और आज ही तेरी महबूबा मुझ पर कुर्बान हो जाएगी। शाम के फन वाली आ चुकी जिसका मुझे इंतज़ार था, वरना मैं तेरी महबूबा को मज़ीद खुशियाँ अता करता। ए सागून, ए मेरे दुश्मन अकवा के बेटे। और कुछ देर को बोझल सा सकूत तारी रहा और फिर वही नौजवान जिसे सागून कहा गया था शिकस्त खुर्दा सी आवाज़ में बोल उठा, तू गलत कह रहा है। यकीन करके मैं अकवा का बेटा नहीं हूँ। कसीफ के हलक से कहका उबल पड़ा और फिर उसने तमस्कराना लहजे में सागून से कहा, तो क्या फिर तू देवताओं की औलाद है? सुन, मैं अब पहले खुद को इसी बूढ़े अकवा का बेटा समझता था, मगर ये गलत है। मैं अलवस ज़दा हूँ, सागून ने अपने बारे में बताया। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मैं अलवस ज़दा का मतलब अच्छी तरह समझती थी और मैं ही क्या, उन पहाड़ी बस्तियों में रहने वाले सभी लोग उसका मतलब समझते थे।
कि अलबस ज़दा उस इंसानी बच्चे को कहा जाता है जिसे किसी मादा रिछ ने दूध पिलाया हो। ऐसे किसी बच्चे को देवताओं की अता और उनकी रहमत और बरकत से समझा जाता है। तू और अलबस ज़दा, तू जो चूहों से ज्यादा कमजोर है। हसीफ हाथ रिचाकर बोला और फिर जोर जोर से हंसने लगा। शायद तू अपनी नाकामी पर अकल खो बैठा है या अपने अंजाम से खौफजदा है। सागून मौत से नहीं डरता, वो जख्मी शेर की तरह दौड़ा। मगर मैं तुझे हकीकत से जरूर आगाह करूंगा। चल अपनी ये हसरत भी निकाल ले, वरना मैं तेरी जुबान भी बंद कर सकता हूँ। हसीफ ने सागून को बोलने की इजाजत दे दी। सुन ए बेखबर बूढ़े, सागून कहने लगा, ये अब से बरसों पहले की बात है कि तेरा दुश्मन और मेरा बाप कहलाने वाला अकवा अपने साथियों के हमरा बेताल के जंगलों में शिकार खेलता फिर रहा था और शर्जिया भी उसके साथ था, जिसने मुझे ये बताया। उन्हीं तारीखी जंगलों में वह वाकया पेश आया जो मेरी जिंदगी और बस्ती गोलरौस को एक अहम रात बन गया। अनजाने में अकवा एक खो के मुंह में पहुंच गया और खूह से एक रीछनी गुर्राती हुए बाहर निकल आई, जिसकी छातियों से एक इंसानी बच्चा चिमटा हुआ था और वो मैं था। अलबस ज़दा, किसी औरत की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा जिसे एक रीछनी ने दूध पिलाया था। मैं पूरी तवज्जो और इन्हमाक से सागून की बातें सुन रही थी और वो चंद लम्हों सांस लेने के लिए रुक गया। देवताओं के कानून के मुताबिक सरदार अकवा का फर्ज था कि वो रीछनी को हलाक करके उससे मुझसे छीन लेता और सागून का फिर अपनी दास्तान बयान करने लगा। अब सरदार अकवा के यह फर्ज हो गया कि वो बाप की तरह मेरी परवरिश करता। अकवा अगर अकेला होता तो वो किसी अलबस ज़ादे को देख लेने के बावजूद शायद देवताओं के कानून से बगावत कर देता और अपनी राह लेता, मगर वो अपने साथियों की वजह से मजबूर था। उसे देवताओं का फैसला मानना पड़ा और यूं मैं अकवा की गोद में आया और मेरे लिए पहले ही रोज से उसके दिल में नफरत की गिरह पड़ गई, लेकिन वह बेबस था। ए हसीफ, तू भी ये बात अच्छी तरह जानता होगा कि देवताओं के मानने वाले किसी अलबस ज़दा के लिए अपने दिल में कितनी इज्जत रखते हैं और उसका मर्तबा कितना बुलंद होता है। उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जा सकता। हत्ता के पहले सरदार की मौत के बाद कबीले या बस्ती की हुक्मरानी भी उसी को मिलती है और यही वो बात थी जो पहले ही दिन से अकवा के दिल में किसी कांटे की तरह उतर गई। अकवा इस बात से खुद एक बेटे का बाप था जो उसके बाद बस्ती का सरदार होता, मगर अब अलबस ज़दा उसकी गोद में आ चुका था और देवताओं के कानून की रोह से अब अकवा के बेटे से जानशीनी का हक छीन चुका था। मगर अकवा का ज़हन उस हकीकत को मानने पर तैयार ना था। वो एक अलबस ज़ादा के फितने को पालना नहीं चाहता और यहाँ शायद वो मुझे ठिकाने ही लगा देता, मगर देवताओं के कहर से डर गया। तब उसने मेरी असलियत को पोशीदा रखने का फैसला कर दिया। बड़ा ना सही, मगर ये भी एक जुर्म ही था। अकवा अपने बेटे की खातर ये जुर्म करने पर तैयार हो गया। तब उसने एक चाल चली और शर्जिया ने भी जान सारी और वफादारी के जोश में उसका साथ दिया। अकवा और शर्जिया ने अपने साथियों को वहीं जंगल में जहर देकर हलाक कर दिया और बस्ती में वापस पहुंचकर उन्होंने एक मनगढ़ दास्तान सुना दी कि हमारा साथी एक हादसे का शिकार हो गए और ये कि मैं उन्हें वीराने में एक ऐसी कुटिया में भूख से बिलखता हुआ मिला जिसके बाहर किसी औरत की मशक शुदा लाश पड़ी थी। अकवा ने मुझे तरस खाकर उठा लिया और अपना बेटा बना लिया। यूं अकवा अलबस ज़ादे की हकीकत को छिपा गया और उसने अपने बेटे की जानशानी का हक महफूज कर लिया और मुझे इसीलिए अलबस ज़दा होने के बावजूद वो इज्जत और तौकीर ना मिली जो देवताओं ने मेरे मुकद्दर की थी। बता ए हसीब, अब तो तुझे यकीन आ गया कि मैं अकवा का बेटा नहीं हूँ। सागून ने अपनी दास्तान के आखिर में मतवक्का नज़रों से हसीब की तरफ देखा। हाँ, मुझे यकीन आ गया, मगर इस बात पर ए मेरे दुश्मन अकवा के बेटे कि तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मगर याद रख कि हरयाश देवता के हरकारी को कोई फ्रेब नहीं दे सकता। हसीब की पुरखवन्नोहवत लहजे में कहा, मैंने अकवा की नस्लों से इंतकाम लेने की कसम खाई थी और मैं इंतकाम जरूर लूँगा और ये मेरा इंतकाम का पहला हिस्सा है। हसीब की आवाज़ से शिद्दत नफरत का इज़हार हो रहा था। मुझे फिर कहने दे कि तू धोखा खा रहा है। ज़ाकून एक मरतबा फिर बोल उठा, अगर तू वाकई हरबाश का देवता का हरकारा है, अकवा का दुश्मन है, तो सुन कि मैं तेरा साथ होने वाले जुल्म की रुदाद सुन चुका हूँ, मगर इस जुल्म का बदला तू अकवा और उसके बेटे से लेगा। तेरी मोहब्बत में अकवा तेरे पीछे कबीर तक चला आया और पकड़ा गया और यहाँ आकर कोई बच के निकल नहीं सकता। कि अब भी तू इसे अपने बाप कहने से इनकार करेगा? हसीफ ने सागून के करीब ही दूसरे सतून से बंधे हुए बूढ़े की तरफ इशारा किया। अच्छा, मैं खुद अकवा से यह तस्दीक कराए देता हूँ ऐ सागून कि तू इसी का बेटा है। और फिर हसीफ ने अकवा को मुखातब किया, बोल ऐ मेरे दुश्मन, क्या यह तेरा बेटा नहीं? नहीं, बूढ़े अकवा ने इत्मीनान से जवाब दिया। हसीफ धाड़ता हुआ अकवा की तरफ बढ़ा। क्या मेरी दहशत भूत बनकर तुम दोनों से चिमट गई है कि अपना रिश्ता भी भुला बैठे?
तू खूब जानता है कि मैं कभी तुझसे खौफजदा नहीं हुआ। अकवा के सुकून में कोई फर्क नहीं आया। तो फिर झूठ को अपनी ढाल क्यों बनाता है? हकीकत यही है कि ये अलवज़ है। देवताओं ने इसे मेरी झोली में डाल दिया था। अकवा बोला। हसीफ ने फिर गद्दार गैर इंसानी सा कहका लगाया और फिर कहने लगा, मैं तेरी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तू बहुत मकार है ए अकवा, लेकिन अब मैं तेरे फरेब में नहीं आऊंगा। मैंने तेरी नस्लों से भी इंतकाम लेने की कसम खाई है और आज तू मेरा इंतकाम देखेगा। अकवा तू कतई पुरसकून मालूम हो रहा था, मगर सागून बहुत बेचैन नजर आ रहा था। सुन ए अकवा, हसीफ फिर बोला, क्या तुझे वो रात याद है जब तू अपने लश्कर से उस बस्ती पर चढ़ दौड़ा था, जो मैं उस बस्ती का तुझसे पहला सरदार था। तूने मेरी बस्ती की ईंट से ईंट बचा दी थी और रात की देवी तेरी मददगार बन गई और मेरी बीवी सीना भी तेरी बर्बरियत का निशाना बन गई थी। याद है अकवा तुझे वो रात? हसीफ की आवाज़ से शोले लपक रहे थे। हाँ मुझे याद है। मैं भला अपने दुश्मन की शिकस्त और जिल्लत की रात को कैसे भुला सकता हूँ? अकवा ने जवाब दिया और उसके लहजे में तीखापन था। हसीफ अलाव के पास आकर रुक गया और मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। माजी के तलख तसव्वुरात का करबो अलम उसकी आंखों और चेहरे से अय्या था। उसने अकवा की बात खत्म होते ही कहा, ऐ मेरे दुश्मन, उस रात मैंने कसम खाई थी कि जब तक जिंदा रहूंगा तेरे लिए कहरो गजब बना रहूंगा और तुझे ही नहीं तेरी नस्लों को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। तू खूब जानता है कि मुझे अपनी बीवी सीना से कितनी मोहब्बत थी और मैं उसी लिए मैदान छोड़कर भागा था कि अपनी ज़िंदगी बचा सकूं और मेरे साथ मेरी इंतकाम भी जिंदा रहे। मैं पहाड़ों और जंगलों में किसी बेचैन रूह की तरह भटकता रहा। आग उगलने वाले किसी पहाड़ की सी वहशत मेरे अंदर समाई हुई थी और मैं इंतकाम की ख्वाहिश में दीवाना हो चुका था। तब मैंने देवताओं से बिलक बिलक कर दुआ मांगी कि वो अपनी कुव्वतों का कुछ हिस्सा मुझे अता कर दें ताकि मैं अपनी कसम का बोझ उतार सकूं। और फिर मुझे धुआं उगलने वाले एक पहाड़ के अंदर कांज देवता का बेटा मिला, जो दहकते हुए लावे के दरमियान एक चट्टान पर सदियों से अपने सीने पर हाथ बांधे बैठा था। उसकी खोपड़ी पर गोश्त का एक रेशा भी मौजूद ना था, लेकिन बदन जवान था। उसे मेरी दीवानगी पर रहम आ गया। तब उसने मुझे अपनी कुव्वतों का एक मामूली सा हिस्सा बख्श दिया और मुझे हरबाश देवता का हरकारा बनाकर कबीत के उस पहाड़ की बुलंदी पर उतार दिया, जिसके पेट में तू भी इस वक्त मौजूद है। और मैंने कंज देवता के बेटे हरियाश से सदियों की भीख मांगी थी, ताकि जब तक इस जमीन पर पहाड़ और उसके नीचे ये जमीन दबी रहे और तेरी नस्ल के लोग इस पर रेंगते हुए नजर आएं और मैं उनसे तेरे जुल्म का इंतकाम लेता रहूं। उसने मुझे सदियों की जिंदगी अपनाने का भेद बता दिया और तू जानता है ए अकवा की वह भेद क्या है? हसीफ ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा और फिर खुद ही जवाब का इंतजार किए बगैर बताने लगा। कांज के बेटे हरियाश ने कहा था कि उसके लिए मुझे 7 दिन तक 7 कुर्बानियां देना लाजमी हैं और फिर मुझे सदियों जिंदा रहने से कोई नहीं रोक सकेगा। और पहली कुर्बानी के लिए एक ऐसी कंवारी को तलाश करने की शर्त थी जिसके सीने पर बाएं तरफ सूरज देवता की बीमारी के लम्हों का दाग हो और मुझे उस कंवारी के बदन से लहू का एक एक कतरा निचोड़कर उसमें अशरफ का सफूफ और ईंधन का रस मिलाकर पीना होगा। उसके बाद मुसलसल 5 दिन तक रोजाना आग उगलने वाले पहाड़ के हिंडे में खोलते लावे के ऊपर एक इंसानी कुर्बानी देना होगी। शर्त यह थी कि इन 5 का ताल्लुक कभी से ना हो और ये 5 कुर्बानियां देने से पहले और बाद में मुझे आग की परस्तश करने का हुक्म दिया गया था। और यूं भी कुर्बानियां देने के बाद 7वीं कुर्बानी के लिए मुझे एक ऐसी कंवारी की जरूरत थी जिसकी कोई निशानी कहर के देवता मुझे खुद बता दें कि मैं उन्हीं का पुजारी हूँ।